JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 3. Subject is SS. We are discussing chapter number 7, Fire, Farming and the Wheel, and this is my session number 3 for this chapter. So, in my previous sessions to this chapter, what have we discussed? That is the introduction part. In introduction, we learned regarding how early men started discovering about fire, how did he start farming, and what was the change in his life due to the invention of wheel. All these things we discussed in the introduction part. Introduction part में हमने ये देखा कि फायर कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे उन्होंने फायर का यूज करना स्टार्ट किया, देन फार्मिंग कैसे स्टार्ट की, क्यों स्टार्ट की फार्मिंग, देन व्हील से उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, ये सारा हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था. देन इन डिटेल डिस्कवरी ऑफ फायर के बारे में हमने व्हाट डिड वी लर्न इन डिस्कवरी ऑफ फायर. यस, that early human did not know what was fire. When he saw the fire for the first time, the fire might have occurred due to the lightning or maybe due to the heat of the sun in summer season when it is extremely hot, or maybe when he rubbed two stones to sharpen the edge, when he struck them against each other, the spark might have fallen on the dry leaf or grass and the fire started. So then initially he was very scared of it. He was scared of fire. But later he understood that this fire was useful to him. Why it was useful? Because by mistake flesh fell into the fire and it got cooked. And when he ate that, जब उसने उसके cooked flesh को खाया, he found that it was tastier than the raw flesh and also easier to be chewed. चबाने में भी easy था. So he learned that fire was useful. Then the other use of fire was to keep himself warm, खुद को warm रखने के लिए. When it is cold, they put the fire so that they get heat, and also at the night the fire was useful because the fire also gave them light. Then one more thing, why did they use fire? Yes, to keep themselves protected from wild animals. Animals से खुद को बचाने के लिए भी फायर का यूज करते थे. Then the beginning of farming. Beginning of farming के बारे में what did we learn? The farming was first started in the western part of Asia, that is in the Fertile Crescent. Western part of Asia, Fertile Crescent जो एरिया है, वहां पर फार्मिंग सबसे पहले स्टार्ट हुआ था. Why did they start farming? Yes, initially they put the seeds of the fruits whichever they ate on the ground. What happens when they put the seed on the ground? The seed sometimes sprouted due to the right climatic condition. राइट क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब अगर उस सीड को प्रॉपर वाटर, एयर, सनलाइट ये सब मिलता है तो वो सीड वहां पर स्प्राउट होने लगी. स्प्राउट मतलब क्या? ग्रो होने लगी. उस सीड में से न्यू प्लांट स्टार्टेड ग्रोइंग. ओके, एंड बाद में जिस फ्रूट का वो सीड था उस फ्रूट का प्लांट वहां ग्रो होने लगा. सो ही ऑब्जर्व दैट. इनिशियली व्हाट डिड अर्ली मैन डू? In search of food, he was wandering here and there. फूड को ढूंढते हुए इधर उधर घूमते रहते थे क्योंकि जहां पर फूड अवेलेबल है वहां पर वो जाते थे. They ate the food and once the food in that area is over, they shifted to the new area. But now what did he observe? Yes, he observed that wherever they put the seeds, sometimes due to right climatic condition, these seeds germinate. They start growing and the new plants grow from that seed. So then slowly and gradually he dropped the seed purposely on the ground. अब उसने क्या किया? Purposely, जानबूझ के seeds को ground पर grow करना start किया. Now since he grew the seeds, he had to stay there to take care of it. अब उस seed को grow होकर फिर उसमें जब
नए फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं तब तक तो वहां पर रहना है ना। सो ही स्टार्टेड लीडिंग सेटल्ड लाइफ। कैसी लाइफ रहने लगा? सेटल्ड लाइफ। एंड ही स्टार्टेड सेटलिंग नियर द रिवर्स बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। रिवर्स के पास रहते थे क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की जरूरत थी। नाउ स्लोली ही बिकेम वेरी मच expert in growing this. So what next? He started growing extra food. खुद को जितना चाहिए उससे ज्यादा फूड ग्रो करने लगे, कम्युनिटी में रहने लगे। सो फर्स्ट विलेज स्टार्टेड बिकॉज ऑफ दिस फार्मिंग। फार्मिंग की वजह से धीरे धीरे फर्स्ट विलेज का बिगिनिंग हुआ। क्यों? क्योंकि जहां पर पानी अवेलेबल है वहां पर वो अपने सीड्स ग्रो करते हैं, और क्योंकि एक जगह पर पानी अवेलेबल है तो बहुत सारे लोग उसी जगह पर रहना प्रेफर करेंगे। तो वहां क्या होगा? विलेज। दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन एंड इट टर्न इनटू द विलेज। देन सम पीपल दे स्टार्टेड ग्रोइंग फूड। उन्होंने फूड ग्रो करना स्टार्ट किया। द अदर्स स्टार्टेड मेकिंग पोटरी। पॉट्स बनाने स्टार्ट किए। किसके प्लॉट? Initially stone के बनते थे, then slowly and gradually they made clay pots. They put them to dry in the sunlight and then they also bake them in the fire. Fire में भी bake करते थे to make them more stronger और strong बनाने के लिए। करेक्ट? इन pots को क्यों बनाते थे? Yes, because whatever the extra food they grew, they can store it in the pot. उस पॉट में उसे स्टोर करते थे। और अगर और भी ज्यादा है तो क्या करते थे? यस, सम पीपल वेर ग्रोइंग क्रॉप्स, सम वेर पॉटर्स। करेक्ट? सम पीपल स्टार्टेड रियरिंग एनिमल्स। एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि एनिमल्स में से मीट, मिल्क सब मिलता है। देन दे स्टार्टेड एक्सचेंजिंग देयर प्रोडक्ट्स विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ इन प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करना स्टार्ट किया। जो फार्मर है वो अपने क्रॉप्स पॉटर को सेल करता है, या फिर जो एनिमल रेयरिंग का काम करता है उसे सेल करता है। उसके बदले में पॉटर उसे अपने पॉट देता है और ये उसे मिल्क देता है। करेक्ट? तो दे स्टार्टेड एक्सचेंजिंग देयर प्रोडक्ट्स, राइट? सो इन दिस वे दे स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल्ड लाइफ। सेटल्ड लाइफ रहना स्टार्ट किया। नाउ इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग इन्वेंशन ऑफ द व्हील। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन विच ब्रॉट अ ड्रास्टिक चेंज इन द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन। अर्ली ह्यूमन की लाइफ में सबसे बड़ा चेंज जो आया वो इस व्हील की वजह से आया। कैसे आया? व्हील का आइडिया कहां से आया? क्यों आया? उससे क्या चेंज हुआ? ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस सेशन एंड दिस इज ऑल्सो द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो शैल अस बिगिन द डिस्कशन? यस, इट इज देयर इन पेज नंबर 264 in your textbook. It was not easy for early human beings to move from place to place. Early human beings के लिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, ट्रैवल करना was not easy because at that time they did not have any vehicles. उनके पास कोई व्हीकल नहीं था। आज आप कार में, बस में, स्कूटर में, और अगर आप अपने फ्रेंड्स के घर जो नजदीक में रहते हैं अगर जाते हो तो यू गो ऑन अ बाइसिकल, साइकिल लेकर जाते हो। बट एट दैट टाइम दे यूज्ड टू वॉक। ओनली वॉकिंग वाज द सॉल्यूशन। और दे कैन राइड एन एनिमल एंड गो ऑन इट। एनिमल्स के ऊपर बैठकर जा सकते हैं। बट इज इट कन्वीनियंट? कंफर्टेबल होगा? नो। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। Traveling or moving from one place to another was very difficult. They had to walk everywhere and also had to carry their loads. तो वो हर जगह पर वॉक करके ही जाते थे। और लोड मतलब अपने पास जो भी कुछ सामान है उन्होंने अपने लिए फूड ग्रेन स्टोर करने के लिए पॉट्स बनाए हैं या अपने लिए एनिमल स्किन के कपड़े बनाए हैं।
तो ये सारी चीजें जो है, जो हम लोग के पास होती है, वही उनके पास भी होती थी, लिमिटेड क्वांटिटी में होती थी मगर होती थी। तो ये सारी चीजें अपना लोड, मतलब अपनी चीजें दे हैड टू कैरी अलोंग देमसेल्फ, अपने साथ ले जानी पड़ती है, वो भी चल के। जस्ट थिंक, इफ यू आर हैविंग समथिंग वेरी हैवी इन योर हैंड एंड यू हैव टू वॉक फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, सो विल इट बी इजी? वो इजी होगा? आपको कहीं चल कर जाना है और साथ में सामान को भी उठा कर जाना है? नो। इवन व्हेन यू कैरी योर ओन स्कूल बैग्स टू स्कूल, यू आस्क योर पेरेंट्स टू कैरी देम। स्कूल तक आने के लिए बैग्स उठानी है तो भी आप अपने पेरेंट्स को बोलते हो कि मम्मा प्लीज होल्ड दिस, डैडी प्लीज होल्ड दिस। तो उन लोगों को हर जगह पर चलकर ही जाना था एंड दे हैड टू कैरी देयर लोड्स एज वेल, लोड को भी कैरी करना था। सम डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज हॉर्सेस एंड डोंकीज कुड कैरी सम लोड्स। हॉर्स, डोंकी ऐसे कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स थे which can carry their loads, but not all the animals. They had goats also with them, they had cow, so can they put their load on those animals? No, only few animals like horse or donkey can carry the load, correct? But all the time and much more load than their capacity can they hold. उनकी भी एक कैपेसिटी होती है ना एनिमल्स की, उससे ज्यादा का लोड तो वो भी नहीं उठा सकते। तो what happens? Then the early man had to carry the load himself, खुद को उठाना पड़ेगा। But these animals would not carry very heavy things, बहुत heavy things है तो ये animals भी थक जाते हैं। अगर आप एनिमल के ऊपर खुद भी बैठ जाओगे और अपना सामान भी उसके ऊपर रखोगे तो एनिमल चल पाएगा? No, it will be difficult because it will become very heavy for him to carry. Correct? So तब क्या होगा? वो एनिमल चल नहीं पाएगा, या तो बीमार पड़ जाएगा या गिर जाएगा, या तो उसकी चलने की स्पीड बहुत कम हो जाएगी। करेक्ट? सो अगेन अनकंफर्टेबल, इनकन्वीनियंट। नाउ early human beings must have noticed logs of wood floating in the river. अर्ली ह्यूमन बींग्स ने क्या देखा होगा कि लॉग्स ऑफ वुड, लकड़ी के टुकड़े, बड़े बड़ी लकड़ी के टुकड़े, he might have observed floating on the river. Floating on the river मतलब see, if the tree is near the river side, नदी के किनारे पर अगर कोई ट्री है तो उसके जो ट्विग्स या उसके जो ब्रांचेस कट होके नीचे गिर जाती है नेचुरली, what happens? It will fall in the river. वो नदी में गिर जाएगी। जब वो नदी में गिरेगी, have you observed that the wood floats on the water? वो वुड जो है वो वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर तैरता रहता है, फ्लोट करता है। करेक्ट? सो ही माइट हैव ऑब्जर्व दैट, उसने वो ऑब्जर्व किया होगा कि दिस इज फ्लोटिंग, ये फ्लोट हो रहा है। नेक्स्ट, अर्ली ह्यूमन बीइंग्स मस्ट हैव नोटिस्ड द logs of wood floating in the river. This would have given them the idea of tying a few logs together to make a raft. तो इससे उसे क्या आइडिया मिला कि कुछ लॉग्स ऑफ वुड को एक साथ टाई कर लेते हैं, बांध लेते हैं। किससे बांधेंगे? उनके पास वो रस्सी जैसा था ना जिससे वो ब्रांचेस के थ्रू बनाते थे। यस, सो ही टाइड देम टुगेदर। 2-3 लकड़ी को टुगेदर में टाई करके उसका एक राफ्ट बना दिया। राफ्ट का मतलब क्या है? सी आई एम शेयरिंग अ पिक्चर हियर। Can you see an early man standing on the raft? Yes. उसने क्या किया है? स्टिक्स को एक साथ बांध दिया है। करेक्ट? नीचे फ्लोर जैसा बन गया, अब उसके ऊपर वो खड़ा है। करेक्ट? तो दैट इज राफ्ट। व्हाट इज इट? से राफ्ट कहते हैं। मीनिंग्स में भी दिया गया है। Flat thing made by tying together pieces of wood and used as boats. और इस राफ्ट को बोट की तरह सेलिंग के लिए यूज करते थे। करेक्ट? तो उसने क्या किया? He saw that the log of wood was floating on the water and then he got an idea to tie few logs of wood together and he made raft. Why did he make raft? Yes, because he used these rafts as
बोट्स, इन राफ्ट्स को बोट्स की तरह यूज करने लगा। This helped early human being to travel along river and also to carry loads on raft. इससे वो रिवर के थ्रू किसी और जगह पर ट्रैवल भी कर सकता है और अपने लोड को भी उसके ऊपर, राफ्ट के ऊपर रख के अपने साथ ले जा सकता है। करेक्ट? सो ही यूज दीज राफ्ट्स फॉर सेलिंग टू डिस्टेंस प्लेस और फॉर ट्रैवलिंग थ्रू रिवर। रिवर के थ्रू ट्रैवलिंग करना है तो कर सकता है, एंड ही कैन ऑल्सो कैरी हिज लोड विद हिम, अपने सामान को भी अपने साथ ले जा सकता है। However, traveling on land was still difficult. But land के ऊपर ट्रैवल करना वो तो आज भी डिफिकल्ट था, because since he used raft to travel through river, river के थ्रू ट्रैवल करने के लिए तो राफ्ट का उसने इन्वेंशन कर लिया, बट अब लैंड के ऊपर ट्रैवल करना है तो क्या करना है? स्टिल वॉकिंग, अभी भी वॉक करके ही जाना है। So it was still difficult. अभी भी difficult task ही है। People used carts and sledges. Carts मतलब, see I am sharing a picture of a cart. Yes, आपने देखा है ना villages में आज भी carts यूज करते हैं। Carts और sledges को यूज किया जाता था, which were pushed or pulled, जिन्हें वो push या pull करता था। करेक्ट? कार्ट का मतलब है छोटे छोटे गाड़ी जैसे, जिसको वो खुद पुश या पुल करता था, या तो एनिमल्स की मदद से या तो अपने आप पुल या पुश करता था। पुश कब करते हैं? जब आगे गाड़ी जाती है और पीछे पीछे आप हो तो उसे पुश करना बोलते हैं। आपने वेजिटेबल वेंडर्स को देखा होगा, वेजिटेबल वेंडर्स जो आपके घर के पास आते हैं, दे पुश देयर कार्ट, वो अपनी गाड़ी को पुश करते हैं। कुछ लोग पुल करते हैं, जब खुद आगे होते हैं, उनकी जो गाड़ी है, उनका जो कार्ट है वो पीछे होता है तो वो उन्हें पुल करता है। बट दीज कार्ट्स कुड मूव ओनली ऑन स्मूथ ग्राउंड। बट ये कार्ट जो है, ये स्मूथ सरफेस जो है, इवन सरफेस जो है, उसके ऊपर ही चल सकते हैं। When the surface is rough or uneven, uneven मतलब अगर उबड़ खाबड़ रास्ता है तो वहां पर ये पॉसिबल नहीं होता है, इट विल बिकम डिफिकल्ट। करेक्ट? आप अगर कहीं पर भी स्लिप होते हो तो स्मूथ सरफेस है तो इजीली स्लिप हो जाते हो, अगर रफ सरफेस है, अनइवन सरफेस है तो स्लिप होते हो? नहीं होते हो। क्यों? क्योंकि हर्डल्स मतलब वहां पर बहुत सारे रफ टेक्सचर्स होते हैं जिससे स्लिप नहीं हो पाते हो। तो उसी तरह उन्होंने इन स्लेजेस को बनाया था, मगर जो इवन सरफेस है वहां पर ये इजीली उन्हें पुश या पुल करके ले जा सकते हैं, मगर अनइवन है तो अगेन इट विल बिकम डिफिकल्ट, उधर वो डिफिकल्ट हो जाएगा। हाउ डिड अर्ली ह्यूमन बिगिन, अर्ली ह्यूमन बीइंग्स इन्वेंट द व्हील? तो उन्होंने व्हील का इन्वेंशन कैसे किया? स्टार्टिंग में स्लेजेस जो बनाया था उसमें व्हील्स नहीं लगे थे, वो सिर्फ ऐसे स्लेज बनाए थे, नीचे कोई व्हील नहीं था, तो ऐसे स्लेज को बना के ही ड्रैग करके ले जाते थे कहीं भी। तो तब इवन अनइवन सरफेस में डिफरेंस आ जाता है, अनइवन है तो डिफिकल्ट हो जाता है, इवन सरफेस है तो इजी हो जाता है। तो फिर उन्होंने व्हील को किस तरह इन्वेंट किया? फिर उनको ये आइडिया कैसा आया कि अगर नीचे यहाँ पर हम व्हील्स लगा देंगे तो इट विल बिकम इजियर, व्हील्स लगाने से ये इजी हो जाएगा। तो इस तरह का आइडिया कैसे मिला होगा उन्हें? यस, नाउ लेट अस सी। They may have seen log of wood rolling down the hill. अगर कोई स्लोपी एरिया है, फॉर एग्जाम्पल ये माउंटेन है, और यहां से अगर मैं किसी वुड को नीचे फेंक दूं तो क्या होगा? वो रोल होते होते नीचे तक आ जाएगा, राउंड 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 घूमते घूमते। अगर आप भी गिर जाते हो तो ऐसे ही रोल होते होते नीचे पहुंच जाते हो ना, फर्स्ट स्टेप के ऊपर गिर जाओ तो नीचे रोल होके आ जाओगे। उसी तरह किसी स्लोप या हिल्स में से उन्होंने लॉग्स ऑफ वुड को देखा होगा कि ये रोल होते नीचे आता है,
क्योंकि वुड जो है, ट्री का ट्रंक जो होता है, ये सारे राउंड होते हैं। तो जब ये गिरते हैं तो वो रोल होने लगते हैं अपने आप, क्योंकि वो स्लोप होता है, हिल्स के ऊपर स्लोप होता है। तो स्लोप में जहां डाउनवर्ड्स होता है तो उस तरफ वो लॉग ऑफ वुड नीचे रोल होने लगता है, करेक्ट। सो ही माइट हैव सीन दीज लॉग्स ऑफ वुड रोलिंग डाउन द हिल। दिस मस्ट हैव मेड देम रियलाइज दैट फिटिंग राउंड लॉग्स अंडर देयर कार्ट वुड मेक मूवमेंट इजियर। तो इससे उन्हें आइडिया मिला कि अपनी जो कार्ट है या स्लेज है, उसके नीचे अगर ये इस तरह के राउंड्स को लगा दे, लॉग्स ऑफ वुड जैसे राउंड को लगा दे, तो उससे इनको मूव करना इजी हो जाएगा। अपनी डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए दे फाउंड द सॉल्यूशन देमसेल्फ बाय ऑब्जर्विंग। व्हाट डिड दे ऑब्जर्व? दे ऑब्जर्व दैट द log of wood rolled down the hill. So they found that these round logs of wood can be fitted under their sledge or a cart, and these sledges can be moved easily because these wheels or logs move round and round and it is effortless. Effort कम हो जाता है. The cart could now move on uneven ground. तो इन राउंड जो लॉग्स ऑफ वुड की वजह से कार्ट इजीली अनइवन ग्राउंड के ऊपर भी मूव कर सकता है, चल सकता है। Thus the wheel was invented. Land travel became easier and faster. और इस तरह से धीरे धीरे पहले लॉग्स ऑफ वुड, फिर उस लॉग को छोटा कर दिया और छोटा कर दिया, उनमें डिजाइन्स डाली गई अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। Slowly and gradually they developed a wheel and made the land travel easier. इससे लैंड के ऊपर का ट्रैवल इजी हो गया। इनिशियली सिर्फ जो अपना लोड है उसे पुल करते थे, then they found कि इससे कार्ट बनाया जाता है और कार्ट को एनिमल के साथ फिक्स कर सकते हैं। फिर उस कार्ट को हम खुद चलाने की जरूरत नहीं है, एनिमल्स पुल करेंगे एंड वी कैन पुट द लोड, अपने सामान को उस कार्ट में रख दे, खुद उस कार्ट के ऊपर बैठ जाए तो भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो व्हील से एक तो ये इन्वेंशन हुआ। धीरे धीरे आज हम क्या करते हैं, इन व्हील्स को टू व्हीलर्स, हमारे स्कूटर, बाइक, साइकिल, इनमें भी लगाते हैं, कार, ट्रक, टेम्पो, ट्रेन है तो ट्रेन में भी नीचे व्हील्स तो होते ही है। So don't you think the invention of wheel was the most important part? तो ये wheel का invention सबसे important part होता है ना? Yes, correct? क्योंकि अगर wheel का invention नहीं हुआ होता तो हम आज भी walking कर रहे होते, distance places पर चलकर जाना पड़ता। So invention of wheel was most important. Thus, with the use of fire, farming and the wheel, people's life became more settled. तो इस वजह से फायर, फार्मिंग, व्हील, ये धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने इन्वेंट किया, डिस्कवर किया, तो उनकी लाइफ इजी होती गई, उनकी लाइफ इजी होती गई, सेटल्ड होने लगे वो लोग। नाउ दे आर नो लॉन्गर वांडरर्स। अब वो वांडरर्स नहीं थे, उनको फूड ग्रेन गैदर करना आ गया, स्टोर करना आ गया, कुक करना आ गया। अपने ट्रैवल को इजी करने के लिए उन्होंने कार्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, रिवर के ऊपर राफ्ट बना दिए ताकि वो वाटर के थ्रू भी ट्रैवल कर सके। तो इन सारी चीजों को धीरे धीरे उन्होंने दे स्टार्टेड डेवलपिंग एंड दीज थिंग्स मेड द अर्ली ह्यूमंस लाइफ मच मोर इजियर देन द past. They were less dependent on nature than before. अब वो नेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते थे। क्यों? क्योंकि अब वो अपने लिए फूड खुद बनाने लगे, नेचर की राह देखने की जरूरत नहीं है कि कहीं फूड मिल जाए तो ही खाना है। खुद ग्रो करते थे, खुद खा लेते थे। अगर ग्रोइंग में टाइम लग रहा है तो उनके पास ऑलरेडी स्टोर्ड फूड तो था ही, तो वो भी हो जाता है। अगर विंटर में ठंडी लग रही है तो उनको फायर आ जाता है,
फायर कैसे करते हैं, हाउ टू स्टार्ट अ फायर. सो ही केप्ट हिमसेल्फ वार्म, खुद को वार्म रखना भी सीख लिया था. देन ट्रैवलिंग करना है तो भी उन्होंने कार्ट बना दिए, तो अब ट्रैवलिंग भी इजी हो गई. तो नेचर के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है. They had more time to think of new ideas because they did not need to spend all their time looking for food. और धीरे धीरे उनको बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम मिलता था नई चीजें सोचने के लिए, नई चीजें बनाने के लिए, बिकॉज लाइफ अब इजी हो गई थी, लाइफ सेटल्ड हो गई थी. तो उनको एक जगह से दूसरी जगह दे डिड नॉट हैव टू मूव इन सर्च ऑफ फूड. जैसे आपको फ्री टाइम मिलता है, आप कुछ नया सोचते हो, कुछ नया करते हो, कुछ नया बनाते हो. सेम वे इवन ही हैड एन एक्स्ट्रा टाइम in which he started thinking in new direction. कुछ नई डायरेक्शन में थिंक करना वो स्टार्ट कर सकता था because he had extra time. तो here we come to the end of discussion of this chapter. इस चैप्टर का डिस्कशन यहाँ खत्म हो रहा है. तो इस चैप्टर में और इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने अर्ली ह्यूमंस के बारे में सीखा था, स्टोन एज के बारे में सीखा था, स्टोन एज क्यों कहा जाता है, फिर अर्ली ह्यूमन का डेवलपमेंट धीरे धीरे अलग अलग स्टेजेस में किस तरह से हुआ, फायर का स्टार्टिंग, फार्मिंग का स्टार्टिंग, व्हील्स का इन्वेंशन, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन दीज 2 चैप्टर्स. ओके, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन by knowing many things regarding early humans. Just think कि अगर आप आज के जमाने में ये सारी चीजें डेवलप नहीं हुई होती तो आप क्या उस सिचुएशन में, अर्ली ह्यूमन के सिचुएशन में रहना पसंद करते? Will it be easy? Easy होता? No, not easy at all. But slowly and gradually उन्होंने खुद को डेवलप किया, ह्यूमन बीइंग्स ने खुद को डेवलप किया, और आज हम इस स्टेट पर है कि हम सारा का सारा काम टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू. करेक्ट. फायर का यूज हम नॉर्मली कुकिंग के लिए ही करते हैं, लाइटिंग के लिए, हीट के लिए करते हैं? नहीं. लाइटिंग के लिए इलेक्ट्रिक लाइट्स आ गई है, हीटिंग के लिए इलेक्ट्रिक हीटर्स आ गए हैं, गर्मी लग रही है तो इलेक्ट्रॉनिक फैन, कम्युनिकेशन के लिए वी हैव फोन्स, मोबाइल फोन्स. करेक्ट. ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर दी है. सो वी हैव डेवलप थ्रू अ लॉन्ग प्रोसेस, बहुत लॉन्ग प्रोसेस हम कर चुके हैं और आज हम एकदम डेवलप हो गए हैं. So in my next session, I will start discussing the exercise of this chapter, which is given in your textbook, page number 265. But before that, I want you all to go through the chapter once. एक बार chapter read कीजिएगा completely, so that when we are discussing the exercise, you can answer the questions easily. Okay? So I am sending the PDF today along with this video, which is fill in the blanks based. You can go through the textbook and find the answers, or you can listen to the video once again carefully. You can also find the answers through the video. So hope to see you good next time. Bye.